A terror plot hidden behind white coats and hospital corridors, what first appeared to be a routine car explosion near Delhi's iconic Red Fort, has now unraveled into one of India's most disturbing terror investigations in recent years. A network of highly educated doctors, allegedly radicalized, recruited, and financed to execute a deadly attack at the heart of the national capital. On the evening of November 10, 2025, a car packed with explosives detonated near the Red Fort. Initial confusion quickly gave way to grim clarity. This was no accident. As investigators traced chemical residues, combed through CCTV, and questioned early suspects, a deeper and unexpected story began emerging. A white-collar terror module allegedly connected to Jaish-e-Mohammed, operating silently through medical institutions and professional networks across several states. Investigators have uncovered new details. An AK-47 bought for more than 5 lakh, a deep freezer reportedly used to store explosive material, and a complex multi-tier handler network now coming to light in the ongoing terror probe. By mid-November, police and national agencies had arrested several individuals, including doctors from Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, and Haryana, and a cleric believed to be the ideological link to the Pakistan-based outfit. The discovery shocked the country. How did educated, trusted professionals become central to a major terror operation? CPIM MLA MY Tarigami said that when the Pahalgam blast had taken place, people from all parts of Kashmir, both villages and cities, had come out on the streets to condemn it. He referred to the situation in Delhi where many innocent people were killed and said that no one could fail to feel regret over such an incident. Tarigami expressed concern that the current focus on alleged white-collar involvement was creating an atmosphere in which every doctor and every Kashmiri was being viewed with suspicion. He warned that such mistrust would only deepen alienation and could further fuel terrorism. मैं एक चीज़ बताऊं, ये रवैया रहा है इस सरकार का, जहां काम करना है वहां करते नहीं हैं। कौन आपको मालूम होगा, जब यहां ब्लास्ट हुआ पहलगाम का, पूरी कश्मीर के जो लोग हैं गाँव शहर में सड़कों पर आए, मजम्मत की। और अभी जो सानिया पेश आया दिल्ली में, जिसमें काफ़ी बेगुनाह लोग मारे गए, किसको अफसोस नहीं है? क्या ये सही नहीं है? आज ये वाइट कॉलर की बात करते हैं और हर डॉक्टर पर, हर कश्मीरी पर शक शुबा की नज़र से देखा जाता है। ये अफसोसनाक है। ये टेररिज्म को हवा देगा। ये उनको ओबलाइज करने वाली बात है। अगर वाकई चाहते हैं सरकार कि टेररिज्म पर काबू पाया जाए, तो लोगों की सफ़ों में एतमाद पैदा करना ज़रूरी है। मैं मानता हूं जो ये सानिया आया, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व बताए जाते हैं जिनका डॉक्टरी पेशे के साथ ताल्लुक़ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पेशा है। लेकिन हर डॉक्टर को हाँकना, हर कश्मीरी को हाँकेंगे आप, मज़दूर हो, तालिब इल्म हो? मेरी नज़र में ये सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाने में रुकावट ही साबित होगा। इससे सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतरी लाने के लिए जो ज़रूरी बात है, जो हमने तजर्बे से सीखा है, वो है जनता में एतमाद पैदा करना, जनता और सरकार के दरमियान दूरियों को कम करना। दूरियों को बढ़ाएंगे हम, शक शुबा के दायरे को बढ़ाएंगे हम, तो लाजिमी तौर पर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। Investigators now say the terror cell involved multiple doctors, not foot soldiers, but individuals with medical degrees, steady incomes, and positions of social trust. According to police and NIA case notes reported by Reuters and NDTV, the group operated under the religious and ideological influence of a Jammu and Kashmir cleric, Irfan Ahmed Waghe, who allegedly connected them with Jaish-e-Mohammed handlers across the border. After all this, the question that hinders: how doctors financed the attack. Unlike many terror cases where money flows from foreign handlers, this module relied heavily on self-funding. According to report that the doctors pooled between 20 to 26 lakh from their own earnings, funds were allegedly handed over to Dr. Umar Unnabi, believed to be at the center of operations. The money went into procuring NPK fertilizer, chemical precursors, and logistical tools needed to assemble explosives. Intelligence agencies told media that another part of the funding may have come through hawala routes traced back to a Jaish handler in Pakistan, but the bulk was self-generated through professional incomes. Now, coming down to the explosive chain, police have confirmed that the module purchased large quantities of NPK fertilizer,
metal casings and other materials used to create improvised explosive devices. A doctor known as Madam Surgeon, reported as Dr. Shahid, is under investigation for allegedly purchasing vehicles, storing weapons and facilitating movement between module members. Threema, an encrypted messaging app, unsent draft messages, temporary phones and carefully coordinated travel. This made the operation difficult to track, a sign of planning beyond amateur levels. At the core of the radicalization and coordination is Mufti Irfan Ahmed Wage, a cleric from Shopian who held closed-door meetings with the doctors, arranged introductions to JEM handlers, facilitated movement of money, rifles and operational instructions. His arrest gave investigators the first concrete map of the network. The NIA is now working to determine whether more professionals, doctors, engineers or students are part of the network now, how widespread radicalization was within certain institutions, whether more explosives or vehicles remain untraced and whether similar white-collar cells exist elsewhere. Kushpal Singh, a parent of a student at Al Falah University, said that they had some concerns regarding the future of their children. Mentioned that the parents had submitted a representation to the college management which had been received, while another parent shared similar concerns regarding the future of the children. Let's have a look. मेरा नाम रजनीश है, मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है। हमारा कंसर्न सिर्फ टू फोल्ड था। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अथॉरिटीज अपना डिसीजन लेगी एज पर लॉ। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एश्योरेंस हमें मिला है कि वो स्टेप ले रहे हैं। एनएमसी की भी विजिट हुई थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी स्टेप लिया जा रहा है और समय के साथ वो कुछ न कुछ प्रॉपर जवाब देंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। आराम से कर लेंगे। सर ये बताइए, आपकी किससे मुलाकात हुई? जो रिप्रेजेंटेटिव थे कौन क्या डेजिग्नेशन? ये कॉलेज के प्रोफेसर थे और वीसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं थी। प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं थे। हमारी रिप्रेजेंटेशन पे वो हमें मंडे ट्यूसडे तक जवाब दे देंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। सर एफिलिएशन को कुछ बताया कि एफिलिएशन कैंसिल होने से क्या असर पड़ेगा या इस तरह की कोई जानकारी मिली हो अभी? उन्होंने बोला कि इसके रिस्पेक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो एक्चुअल डिसीजन देंगे कि डी रिकॉग्नाइज होगी यूनिवर्सिटी या नहीं होगी। तो वी शुड वेट आउटकम क्या होता है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं सर यहाँ पे? जी, आप लोग सेटिस्फाइड हैं इनके आसपास? देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है, एक दिन के अंदर रिजल्ट आएगा नहीं, समय तो लगेगा। हम भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए हैं और हम आगे चल के कुछ और होता। और अंदर क्या जो सवाल थे आप लोगों के, उसका प्रॉपर आप लोग को रेसिप्रोकेशन जवाब मिला है? सर, इसका एक दिन में इस चीज का जवाब नहीं आ सकता है। अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन की है, कंसर्न है, समय के साथ रिजॉल्व होगा। ठीक है ना सर? अपना नाम बता दीजिए। आप रजनीश, सेकेंड ईयर में। हम अभी पेरेंट्स आए थे। हम पेरेंट्स सभी यही है कि हम हमारे बच्चों की बात रखने आए थे। क्यों अभी जो सिचुएशन है, जो क्रूशल स्टेज इनकी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे, वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर ली है। तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। मैनेजमेंट से जी एक तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। उन्होंने ऑरली कोई रिटर्न में नहीं हमें दिया, ऑरली उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं नहीं खराब होने वाला। वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हम श्योर हैं कि कॉलेज अभी बंद नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और जो अंदर बात हुई पूरी सद्भावना भरे माहौल में हुई है। कोई उसमें कोई जो हमने पूछा उन्होंने सही सही बताया। आपकी मुलाकात किससे हुई सर? किससे कौन था? मुलाकात हुई और उन्होंने एफिलिएशन कैंसिल को लेकर कोई जवाब दिया? नहीं जी, वो जो काम है एफिलिएशन वगैरह के, वो एनएमसी के हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, अभी हमने उनको लेटर दिया जी साइन करके। सर क्या लिखा लेटर में आपने? लेटर में हमने लिखा है जी
के अगर है जी क्या लिखा है सर मीटिंग में लेटर नहीं बीसी आज आए नहीं जी। बीसी आज उन्होंने बोला कि बीसी किसी जरूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने गए हैं, वो नहीं मिले हमें। वहाँ फैकल्टी के 3 थे बंदे, 2 जेंट्स थे 2 लेडीज थी। सर आपने लेटर में ये बताइए सर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी को मिसयूज करने जा रहे थे, ये जो डॉक्टर्स मिसयूज कर रहे थे, क्या इसके बारे में अथॉरिटी को पता था? नहीं हमारे को इस बातें कुछ नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं जी। क्या टेरर मॉड्यूल है क्या क्या ना कुछ नहीं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए। लेटर में हमने सर यही लिखा है कि अगर कल को हरियाणा गवर्नमेंट, एनएमसी, एमसीआई या कोई भी एक्शन करती है तो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनका फ्यूचर क्या हाल देख लो जी। सर ऐसा पेरेंट्स आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा कंसर्न है ये आप लोग के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखो जी ये जवाब तो यूनिवर्सिटी दे सकती है। बच्चों से आपकी बात हुई, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं जी अभी जो माहौल है ना, अभी जो माहौल अंदर का है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसा सर देखो ये एंटी कंट्री इतनी बड़ी बात हो गई, हम खुद घबरा जाते हैं, बच्चे तो छोटी सी बात है। अच्छा सर हौसला दिया बच्चों को, क्या बताया इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल इसको लेके और पेरेंट्स की चिंता क्या है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? सरकार से भी ऐसा है कि एग्जामिनेशन सीजन भी है, काफी उनकी प्रॉब्लम भी होगी। सर ऐसा है देखो, जहाँ तक टेरर का सवाल है वो या तो सिक्योरिटी एजेंसी बता सकती हैं या यूनिवर्सिटी वाले खुद बता सकते हैं। हाँ बच्चों के मतलब कोई सवाल है वो हम बता सकते हैं। सरकार से भी कोई अपील करना चाहेंगे? कितने पेरेंट्स मिले हैं सर? बच्चों को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको प्रॉपर है जी, स्टूडेंट्स तकरीबन आ रहे हैं जी, तकरीबन सारे। आज हम तकरीबन 15-16 पेरेंट्स मिले हैं जी, एक टीम बना के। कोई चंडीगढ़ से आया है जी, कोई राजस्थान से आया है, हरियाणा से, एनसीआर से आए हैं। सर इसमें कोई सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं? सर एमबीबीएस कर रहे हैं हमारे बच्चे, मान के चलो 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक हमारे बच्चे हैं। सर बच्चों का नाम ऐसे नहीं है, मेरा नाम खुशपाल सिंह है जी, ये हमारे रजनीश जी हैं जी। From hospital wards to terror cells, the Delhi Red Fort blast has exposed a troubling shift in India's security landscape, one where trust, education and legitimacy are being weaponized by extremist networks. The investigation is still unfolding, but the message is clear. The face of terror is changing and the country must now confront its newest and most unexpected threat, the educated insider.